Hello, good morning. How are you? All good. Keep learning. So, on last lecture, I had left the topic of animal kingdom. Uh, we should start a germ layer. याद आया? Keep learning. That's good. Keep learning always. That's good spirit for you and the society. So now we are going to take a next lecture of animal kingdom, that is germ layer. Started? What? Germ layer. See, germ layer. What do you mean by germ layer? What do you mean by germ layer? Actually, germ layer is nothing. Germs means origin, layer means layer. So means how many type of layer? That is simply two type, diploblastic and triploblastic. Some animals have two layer and some animals have three layer, which has two layer, that is called diploblastic, and some animal having a three layer, that is called triploblastic. How many layer we have? Exactly, very good, triploblastic. So diploblastic and triploblastic. By mentioning of these names, the spelling is very clear and the meaning is also very clear. Diplo means what? The two layer, and the triplo means what? Three layer. So diploblastic, that is ectoderm and endoderm. Ectoderm and endoderm. क्या लिखूं मैं? Ectoderm plus endoderm. And example of the diploblastic animal? Example of the diploblastic animal? Any idea? Example of the diploblastic animal are Cnidaria, Ctenophora, Cnidaria, Ctenophora, and in this structure you can find the very important term that is called mesoglia. This is very important. Actually, I am not showing here diagram. You can see in NCERT. Yes, it is clearly mentioned there. Diagram. So mesoglia terms is very important for you. So a jelly-like structure is known as mesoglia. Jelly-like structure is known as mesoglia. यहीं पे लिख दे रहा हूं. मीजोग्लिया इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, समझे? On the opposite hand, triploblastic, so there are three layer: ectoderm, endoderm, along with the mesoderm. Ectoderm, plus mesoderm plus endoderm. Endoderm first time developed in where? Platyhelminthes. First time developed in platyhelminthes. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा. Example: platyhelminthes chordates.
कॉर्डेट्स। और मेसोडर्म कैसी होती है? सॉलिड होती है, सॉलिड मेसोडर्म। इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या मिलेगा? इसके आगे मिलेगा तुमको सीलोम। क्या मिलेगा? सीलोम। हाँ, 3 टाइप का सीलोम होता है। सीलोम मतलब कैविटी, कैविटी का मतलब एक अंदर खाली स्पेस, इंटरनल स्पेस। हाँ, तो सीलोम की बात करते हैं। सीलोम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैविटी। कैविटी का क्या मतलब है? इंटरनल स्पेस विच हैव, क्या हैव, फंस गया यार, और क्या, नीचे क्या रखा है? ये तार है, देख लो, ये देखो। हाँ, और ऑफलाइन वालों तुमको दिख रहा, ऑनलाइन वालों को दो भैया, देख लीजिए, देखो, ये देखो फंस गया था, ये दिखा, माला पहना दे तुमको। इंटरनल स्पेस विच फॉर्म बाय which formed by what? Formed by mesoderm। ये पे लिख दे रहा हूं, formed by mesoderm। इंपॉर्टेंट है ये बात। प्रेजेंट बिटवीन, कहा? दो ही लेयर के बीच में होगी यार। प्रेजेंट बिटवीन, यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या लिखें? बोलो। आउटर बॉडी वॉल एंड इनर 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 गट वॉल। ठीक, कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है बल्कि। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। लिख दें, नाम लिख देते हैं, एक्सप्लेन आगे कर देंगे। 3 टाइप की। पहली एसीलोमेट, दूसरी स्यूडोसीलोमेट, तीसरी सीलोमेट। एसीलोमेट, दूसरी स्यूडोसीलोमेट। कैसे लिखते हैं स्यूडोसीलोमेट? स्यूडो सीलोमेट, और तीसरी सीलोमेट। देख भाई, अगर सीलोम पाई जा रही है तो सीलोमेट, नहीं पाई जा रही है तो ए सीलोमेट, और वर्चुअल है मतलब फॉल्स है तो स्यूडो सीलोमेट। क्या पूछना क्या इसमें? अब इसमें एग्जांपल देख लो कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो ए सीलोमेट, पहले तो ए सीलोमेट बता देते हैं तुमको, है ना। ए सीलोमेट का मतलब सीलोम है ही नहीं, फर्जी की लोकेशन है। ए सीलोमेट, तो ए सीलोमेट क्या लिखें बोलो? डिप्लो और ट्रिप्लो, एग्जाम्पल लिखना है। तो डिप्लो और ट्रिप्लो तो बात ठीक है, बात सही है। डिप्लो और, चलो हम लिख दे रहे हैं, तुम्हारी ये भी बात को लिखे दे रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, डिप्लो ब्लास्टिक ए सीलोमेट, ए सीलोमेट प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट। ये लो, बास्टिक लिख दिया, अब सही है। ब्लास्टिक ए सीलोमेट। एग्जाम्पल, हाँ, निडेरिया और टिनोफोरा। निडेरिया एंड, डायग्राम किताब से देख के बनाओगे।
हम नहीं बना रहे हैं। हाँ, हम नहीं बना रहे हैं यार, तुम बनाओगे, किताब में देखो बना हुआ है। बोलो स्यूडो। इसमें एक ही एग्जांपल आता है, दैट इज कॉल्ड एसके हेलमनथीज। याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका है आस्क स्यूडो। आस्क स्यूडो, आस्क मींस एसक्यूएल में, स्यूडो मींस स्यूडो। तो आस्क के जितने ऊपर है वो सब क्या, ए सी लो, उसके नीचे है वो सब सी लो। याद हो गया? आस्क स्यूडो। अब सीलोमेट की बात कर लेते हैं। देखो भाई, सीलोमेट में दो होते हैं, एक एंटेरोसीलोमेट और एक साइजोसीलोमेट। दो होते हैं, एक एंटेरोसीलोमेट और एक साइजोसीलोमेट। तुम्हारी किताब में नहीं दिया है लेकिन तुम पढ़ लो यार। सीलोमेट का मतलब क्या है? सीलोमेट का मतलब है लेयर्स प्रेजेंट होंगी। तो कौन कौन सी लेयर होंगी? इक्टोडर्म भी होगी बेटा, मेसोडर्म भी होगी और एंडो भी होगी। एग्जाम्पल में अगर लेकर के आओगे तो प्लेटी से लगा करके सारे कॉर्डेट्स तक, प्लेटी से लगा करके सारे कॉर्डेट्स तक होता है। अब साइजो और एंटेरो भी हो, कभी कभी पूछ लेता है ये, तो साइजो भी लिख लो और एंटेरो भी लिख लो। तो साइजोसीलोमेट में तुम क्या लिखोगे? साइजोसीलोमेट में एनिमल आते हैं आम, 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 गुठलियों के दाम। आम का मतलब खाने वाला आम नहीं बेटा, आम का मतलब हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक। और एंटेरोसीलोमेट की अगर तुमसे बात करें तो इसमें क्या बचा? इसमें तुम्हारा बचा इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। अब बताओ कुछ छूटा? नहीं ना? हो गया, नोट कर लो। अब बॉडी प्लान की बात कर लेते हैं जल्दी से। हो गया? बॉडी प्लेन की बात कर लेते हैं। बॉडी प्लेन में एक मिनट रुक जाओ यार, इसका ना इलाज ही कर देते हैं। ये माला जो बार बार लटक रही है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर लो और फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे पॉकेट में रख लो। अब इसका इलाज हो गया। ये बार बार पैर में नहीं फंसेगी, टूट सकती है ना? चलो आगे बढ़े। गाना, गाना बाद में सुन लेना, अभी ना सुनो, अभी पढ़ लो थोड़ा सा। बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन, बॉडी प्लेन। बॉडी को बिठाकर प्लेन में उड़ाओ, तुम्हारी बॉडी को, और किस डेड बॉडी नहीं पे पागल। बॉडी को बिठा करके किस में उड़ा दो? प्लेन में उड़ा दो। देखो तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखो। सेल एग्रीगेट पहला चीज, सेल एग्रीगेट, क्या लिखते हैं? सेल एग्रीगेशन। सेल आपस में जुड़ गई, किसमें देखने को मिल गया है? पोरीफेरा में मिला। और किसमें देखने को मिला? पोरीफेरा में देखने को मिला। दूसरा है क्या हुआ? हाँ, पोरीफेरा याद रखो, और कुछ थोड़े इसमें। ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है यार इसमें।
इनकम्प्लीट डाइजेशन। अब इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है तो किसमें मिलेगा? एग्जाम्पल बताओ, तुम बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ जल्दी से, पीछे बैठे हो वो। हाँ बोलो। टीनोफोरा और निडेरिया, वेरी गुड। टीनोफोरा और निडेरिया। ट्यूब विद इन ट्यूब ले लो, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चों से, बालकों। कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो किसमें एग्जांपल लेके आ जाओ, एग्जांपल ले लो एसके हेलमिंथेस से लगा करके कॉर्डेट्स तक। कॉर्डेट्स तक आ जाओ, ठीक है? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की। किसकी बात करें? बोलो। सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन क्या होता है बताओ भाई? सेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा 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 ना। हाँ, तो सेगमेंटेशन होता है ट्रू सेगमेंटेशन। और क्या होता है? अगर सेगमेंटेशन है तो दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। और आगे चल करके इसको बोलोगे आप मेटामेरिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन की जब बात होती है तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल बड़े काम का है। हाँ, एग्जाम्पल ही पूछेगा तुमसे, और कुछ नहीं पूछेगा। डायग्राम बना के क्वेश्चन रख देगा, ठीक है? हाँ तो देखो इसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स, ठीक। अब बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे की बात होती है दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड को बढ़ाते हैं आगे, और नोटोकॉर्ड को समझ लो। और ये लगभग शुरू होने वाला है अब चैप्टर। अभी तक तो रेफरेंस चल रहे थे। नोटोकॉर्ड यहीं पे देख लो बेटा। नोटो गलत लिख दिया। नोटोकॉर्ड पहले सही लिखा था। हाँ यार, पहले सही लिखा था। अब देखो नोटोकॉर्ड ओरिजिन कैसी है? पहला क्वेश्चन, मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है? मीजोडर्मल। एक्ट एज क्या? सपोर्टिंग सिस्टम। यहां से लिख दे रहे हैं एक्ट एज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंडोस्केलेटन की तरह। रॉड लाइक, रॉड लाइक है। फीचर इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान रखना।
ये है, ठीक। नॉन, ये 3 फीचर हैं। अब नॉन कॉर्डेट्स की अगर तुमसे बात करें, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की बात करें, तो नॉन कॉर्डेट्स यहीं पे लिख देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में अगर तुम देखोगे और कॉर्डेट्स में देखोगे, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, जबकि यहां पर होती है नोटोकॉर्ड। एब्सेंट है बच्चों, यहां पर प्रेजेंट है बालकों। बस यही वजह है क्वेश्चन की, जो 4 मई को पेपर आया था, स्टेटमेंट क्या लिखा था याद करो। असर्शन रीजन था कि नहीं था? पेपर खोलो, दिखाएं तुमको पेपर। हाँ खोलो, मेरे पास तो है, अभी देखते हैं, अभी निकालते हैं पेपर। हाँ अभी हम देख रहे हैं, तुम खोलो पेपर। यही वजह है कि सम कॉर्डेट्स, लिख लो इस बात को कि इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड, इन सम कॉर्डेट्स, इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड क्या कैन रिप्लेस, हाँ कैन आर रिप्लेस बाई, आर replaced by vertebral column, vertebral, यहीं पे लिखे दे रहा हूं, column called vertebrate, called vertebrate, hence क्या hence? Point number 1, all vertebrates are chordate, all vertebrate are chordates, but all chordates are not वर्टिब्रेट। यही रीजन है, यही क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का क्वेश्चन था। नीट लिख दो यहां पर 2025 इंपॉर्टेंट। समझे नहीं समझे? समझ गए? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे, बहुत देर चल रही है, ठीक। तो अब बस, ज्यादा नहीं, अब बस हो गया, ये खत्म, ये खत्म। हाँ चैप्टर भी खत्म, चैप्टर नहीं खत्म, क्लास खत्म। हाथ से लिख दिया यार, ये लो, थैंक्स। अब तुम्हारे पास क्या काम है? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास काम है चैप्टर जहां तक पढ़ाया यहाँ तक पढ़ो, इसको रिवाइज करो। इसको रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन पेपर होंगे कुछ, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्लास हुई, अभी पेपर टाइम है। डीपीपी मिलेगी, लेकिन अभी 1-2 पॉइंट पढ़ाने के बाद मिलेगी। तो अभी इसको पढ़ो, क्लास करो, कोई समस्या हो हमसे पूछो, ठीक है। एक बात और बता दो तुमको, 9th और 10th के बैच शुरू हो रहे हैं। हाँ तारीख 10 तारीख से, हाँ 10 तारीख से, 10 मई से शुरू कर रहे हैं। 9th-10th के जो बच्चे आना चाहते हैं, तुम में से बहुत से बच्चे जिनके दोस्त, भाई, सिस्टर, बहन, पड़ोसी पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन क्या हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन आना चाहो ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। धूप भी होती है, मौसम भी ज़्यादा सही नहीं रहता है, इसलिए घर से बैठ के पढ़ लो, ठीक है। जुड़ो और रजिस्ट्रेशन करा लो। 9th-10th के बैच 10 तारीख से, 10 मई से शुरू करेंगे। ओके, कीप लर्निंग, कीप स्टडी, बाय।